Om Shanti. Good evening. So hearty welcome to all of you to yet another refreshing Sunday evening talk. So the topic for today's talk is, who wants to volunteer for the topic? Nobody knows. What is the topic for today? Sorry? Mind hydration. You're slightly close, still far. Spiritual hydration. Yeah, so it's Soulful Summers, right? A very thought about topic by our faculty today, Sister Vasanta, especially for the season that we are in. So we take care not only of our body, but also our mind. We have to keep the cool, right? Both at the body level, at the mental level. So before we get started in the topic, we'll first start with a fun quiz, and that would be hosted by Sister Deepika. I'll invite her to the stage to host it. And post the quiz, we'll have the talk and from Sister Vasant. How are you all? Can you just say loud? Om Shanti? Okay, thank you. So now we are going to start this fun quiz. So I request you all to please take out your phone, because you will be answering from your phone and you will see the questions here. Okay? So once you open your phones, open the browser, Google Chrome or anything else which you have, and go to the website www.kahoot.it. Many of you have already played earlier in previous sessions. If you are new, if you are facing any difficulty, please raise your hand, and you should see this screen on your phone, which you are seeing on the screen here. Done? Are you all done? If you are done, can you please raise your hand? Others, you are not playing? Oh, very good. Okay. Others, if you have the mobile, are you all on the same page? Ready? हिंदी में बोले. आपके पास फोन है? Okay. Help. Okay. ठीक है. So we will start now. If you are all ready, just last raise your hand if you are all ready. Okay. So this is going to be a fun quiz. It's not something that we will test your general knowledge or something, or this is not also a competition. So just for some fun. Okay. So let's start. We will generate a pin, and you can provide that pin in your mobile. So the pin is 4590430. Once you enter this pin on your mobile, you will get added to the quiz, and you can see your name here. So only 33 have joined yet. Those who have just come, please open your mobile and enter this pin. We'll give just one more minute for everyone to get added to this. How many of you are playing this for the first time here? Okay, there are many. So if you have any questions, please let me know. Sorry? Can't be reached. Did you enter this correctly? www.kahoot.it. kahoot.it. Okay, so what will happen now when we start? After I start this, let people join in the meantime.
So you will see, this is a multiple choice kind of questions. So you will see the options here. Question will be there. You will see the options in your mobile. You will just have to select the right answer. So there will be a timer of, let's say, 20 or 30 seconds. So based on the right answer and based on how quickly you answer, okay? Based on that, your scoreboard will be there. Sorry? It's not KBC. You are not going to get the money prize here. But yes, you will be able to see your name if you are there on top 5. Okay, shall we start now? Are you all ready? Okay. So first question will be a poll question, just simple one. So let's start. So this is all related to summers. So how do you stay cool in summer? So you will see 4 options here. So whatever ways you use to be cool in summers, so you can select that. So this is a poll question. So you drink lots of water, or you stay indoors all the day, or you wear light clothes, or you enjoy ice cream. Okay. So we are done? Okay. So lot of you, 33 people, you drink lots of water. So this is how you stay cool in summers. Others also have selected like you stay indoors, or you wear light clothes, or you enjoy ice cream. Okay. So now we will start with the questions. So be ready, be quick. These are not going to be very difficult questions, but some fun type questions, okay? Okay. So what's a good summer fruit to stay hydrated? Done. Very good. So everyone has selected correct one, which is watermelon. So let's see who did the first. So on top we have Viresh, and then Afreen, Sonam, Samriddhi, Ankush. Thank you. So shall we go to the next one? Are you all comfortable now with this? Okay, thank you. Let's go to the next one. If you sweat a lot, what minerals might you lose? Okay. So the right answer is salt and potassium. Others have joined iron and zinc also, and someone has selected chocolate and ice cream. So, uh, honestly, who is that person who has selected chocolate and ice cream? Okay, by mistake. Okay, that is fine. So let's go to the next one. So here, if you see the scoreboard, now Samriddhi is on top, and Sneha has come up on these top 5. So next, what is a simple way to prevent dehydration? Very good. So everyone has selected the correct one, which is you should drink water regularly. Okay, almost same. So let's go to the next one. What is a good reason to avoid very cold showers after heat exhaustion? Everyone is looking so confused. Really? So
few people have selected, you might turn into a snowman. Okay. Penguins might follow you, 2 people, and your shower will file a complaint. Really? Okay, so the right answer is they can shock your system. Okay, so we should first calm down and then take a shower. We should not directly take the cold shower. Okay. Samriddhi is on top. Let's move on to the next one. How often should you reapply sunscreen? Do you all apply sunscreen? Okay, I should not distract you first. Okay, nice. I mean, are you doing this intentionally? The sun will text you? I- if sun is texting you, I would like to get the number of sun. I want to talk to sun. Okay. So the right answer is if after every 2 hours you should reapply the sunscreen to protect yourself from sunlight or UV screen light. Okay. Next. What's the safest way to store food outdoors in summer? Very easy. Okay. Tell it to stay fresh. Who selected this one? If you just say your food to just stay fresh and it will be fresh. Who has selected this one? Okay. Others? 3 people have selected this. You? Do you think it will listen to you? Do you have kids? Do they listen to you? Anyways, okay. So the right answer is pack with ice in cooler. So let's move on. And okay, some people have come up on the top. Next. Why should you wear sunglasses in summer? Nice, okay. Okay. Whoever has selected this nap undetected, so you might be using this formula in your office in front of your boss also, but good way, okay. Next. What symptom might you experience with heat exhaustion? Okay. So it could be different for different people. Okay. So maybe, the first one may also be correct for them. But here, what we feel is the right answer is feeling like melted ice cream. Okay. We usually melt, right? We sweat a lot. So, okay. Let's go to the next one. What's the best way to protect your skin from sunburn? Paint yourself white. Okay, right.
Hide under an umbrella. That is also a good option. Yes. Okay. When is the worst time to jog in summer? What do you think? Or is there any good time also? Midnight. There are people who always think that we will go for a morning walk. So I think the best option for them is while they're sleeping, they're doing the walk, right? So midnight while sleepwalking. Anyways, the right answer is noon. So you should not go for a walk in noon. So let's go to the next one. What vitamin do you soak up from sunlight? So I think very easy. Good. Netflix? Okay, we'll go to the next one. It's vitamin D. What kind of clothes help you stay cool in summer? होममेड सुपर हीरो कॉस्ट्यूम. कोई बच्चा है यहाँ पे, उसी ने सिलेक्ट किया होगा. ये किसने सिलेक्ट किया है? सुपर हीरो कॉस्ट्यूम. हाँ, सी आई गेस्ड इट राइट. सो ओके, थैंक यू. नेक्स्ट वन. व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ हीट स्ट्रोक? Fast. Okay, so the right answer is overheating from heat. So when you get overheated, I mean from the sunlight, so then we get the heat stroke. Okay. So this is the last question. What should you drink the most during a hot summer day? The tea coffee lovers, you can choose that option. Nice. Okay, at least one question everyone has answered correctly, which is water. So thank you very much. Let's see who are all on the top. Okay. First. Very good. And we have two runner-ups also, Samriddhi and Bobby. So thank you everyone for participating in this. Okay, can you all please raise your hands, these 5 people? Who is RR? Okay. Vinay? Lasya? Okay. And Samriddhi? Okay, Bobby? Okay, thank you very much. So now this was about the summers and few, tips and whatever we do in summers. So now I will request again Anupam sister to go ahead with the spiritual summer. Thank you. Thank you, Deepika sister, for hosting the quiz, and thanks a lot to our guest. I think everybody engaged fully. Was it really fun? Seeing the answers, I thought it was fun. People choosing superhero costumes. Right. So, and congratulations to the winners.
So moving on to the much awaited talk. Few of the guests came in just now and they've been waiting for the talk. So I would like to invite Sister Vasanta to the podium here, to the dais. Let's give a round of applause for Sister Vasanta. I think most of us would be knowing her. Can you please show off your hands who are aware of Sister Vasanta? Not everyone. Also, we have a good amount of new guests also today. So, Sister Vasanta is a senior Raj Yoga faculty and she's a very active teacher here at Shanti Sarovar. So, she takes care of a lot of events and conference and seminars which happen at Shanti Sarovar. She's been practicing Raj Yoga meditation since her childhood now. And before she dedicated her life to the services of the society, so educationally she's completed her MA and MPhil in English literature. And she also was a lecturer in a lot of educational institutions before she decided to surrender her life to the services of the society and talk about Brahma Kumari's values and meditations. Right, so I'll pass on to Sister Vasanta to let us know how do we soothe our soul and the body in the summer. Over to Sister Vasanta. Om Shanti. Once again, can you all repeat along with me? Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Did it soothe yourself? So, a nice topic for me to churn on this for the whole week. So, how this concept came in mind? Last week, means Saturday, not yesterday, last week. So there was a session in Inner Space and that was on 1:30 in the afternoon. I went from here to there and it was very hot on that time. And I was thinking, I just want to go and sit in front of the fan because pedestrian fan, or I want to go in the AC. That much heat it was. And then a thought came in the mind. If the body is feeling so hot in just 5 minutes or 10 minutes of walk in midsummer, how much the soul is feeling tired in the summer of the life. Right? That is how the thought came. What will be the things which come in the soul in the summer and how we can overcome? What are the mechanisms we can use to overcome this summer soul summer? Because it is not just a season for just 2 months or 3 months for the soul summer, right? Yes? How long it would be in a year? Huh? All through year. Is that so? For everyone? Summer for the soul right through the year. Yes? 365 days. If not 365 days, maybe few moments I am not in that summer. And many times I am experiencing that heat. The soul experiences the heat in the body, in the soul, in the mind, in relationships, spiritual summer, right? Emotional summer, right? Different areas we go through this summer stroke. So just a thought, it's more to do with the fun, not only with fun, but something we can learn. So that is the motto behind this talk actually.
and I was saying I need to get only this week. If it is past, no validity for this topic. Right? That's why I said only this week we'll do, so that May is peak summer, and before that we experience the coolness for the soul. So let's see few things what we all do in summer physically to keep the self hydrated, and how we can keep the soul hydrated. What are the things which we need to follow? Right? This is not just a talk, but something you also need to churn for your situations, for your environment, in your relationships, how you will respond to these things. So it's more to do with your reflection also. So now we will start with a story. There was this village where there was so much heat, and the teacher took the children to some place, and when they went out, the children were feeling very hot, and they were saying, teacher, we want to sit somewhere, we need to enjoy the shade, and we want to get water, we want to take shower, then only we will move ahead. So please stop us somewhere. Right? Then the teacher asked, what is happening? Why you need to do? The children said, there is so much of dust, there is so much of heat, there is so much of sweating, there is so much of stickiness in the body because of the sweat. So we cannot go ahead with this kind of system. So we need to sit somewhere and we need to just get some rest. Then the teacher asked, okay, this is fine for the body. You're giving so much of rest and you need shower or so many things. What will be the condition of your mind? Right? So what will be attracting in this summer, soul summer? What will be the things which we carry with? So let's see what are the things which we carry. This is a kind of reflection. What about the dirt of the mind? The heat of anger? Right? Anger is just like a fire, which is just eating away the soul, burning out the soul. So the dust of worry and the stickiness of ego and comparison in life. So the teacher asked these questions. What about the dirt of the mind, the heat of anger, the dust of worry, the stickiness of ego and comparison? So now I am asking you all, how often do we shower the soul? Do we shower the soul? Do you all shower the soul? How often do you shower? Maybe 2-3 times we take shower in this summer? Yeah? जब भी लगा कुछ जाओ बाथरूम में 2 मग तो डाल के आओ फिर ठीक लगेगा. Right? So, do you take time or pause to have shower for the soul? Yes? Do you take time for your own self? बोलो ना. लेते हैं टाइम, ब्रेक्स लेते हैं, पॉज करते हैं लाइफ में to take the shower for the soul. So, the season outside reflects the state inside. जो चल रहा है बाहर गर्मी चल रहा है तो इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है. वैसे तो नहीं होना चाहिए. I have to be cool inside usually, right? But बाहर के साथ साथ मैं भी अंदर बहुत गर्म हो जाती हूँ, क्योंकि अभी नया एक एक्स्ट्रा एडिशन है कि बाहर गर्मी ज़्यादा है तो वो भी मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं. एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए ऐसे. तो द सीजन आउटसाइड रिफ्लेक्ट्स द स्टेट
inside, particularly in the summer. एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है. तो दिस इज़ द पर्पस एक्चुअली, राइट? दिस इज़ द पर्पस ऑफ आवर टॉक, दैट हाउ वी कैन कीप आवर सोल ऑल्सो हाइड्रेटेड, cool, chill in the situations of negativity, anger, frustration, comparison. So many things are happening in life whole day. Sometimes we express through our mouth, through our facial expressions, through our actions, and many times here it is burning out the soul, because I cannot express many times, because my relationships will not allow me to say that. Either my wife or husband or my boss, I cannot express my anger, my frustration. So I am heating up my soul. There is no letting out many times. Yes, it happened, right? It's happened. So what we have to do, we will see. So what are the things which we use in summer to keep ourselves safe from sun? क्या करते हैं आप जी? वाटर एक है, और क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगाना है. कितना समय में लगाने के लिए बोल रहे थे दीपिका बहन? अगर नहीं आदत है तो नहीं करो. That is science saying that 2 hours once you have to apply sunscreen. So don't take it too serious. Okay. So what else you have to do to keep yourself safe from sun? Light colored loose clothes, hat, sunglasses. What else? Hanji? Be in the shades. Yes. Umbrella. Choose your timings to go out, right? Or stay hydrated throughout the day, right? आपने जो बताया वो सब ठीक ही है, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है वो भी तरीके से हम सीखेंगे आज. तो हम what are the accessories which we use in summer, right? So first thing comes is छाता पकड़ के जाओ थोड़ा मुश्किल है, राइट? तो हम क्या करते हैं, कौन सा एक्सेसरी यूज़ करते हैं, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? मतलब फ्रॉम विच आई विल प्रोटेक्ट, द सोल विल बी प्रोटेक्टेड. इफ आई वेयर दैट एक्सेसरी, द सोल विल बी प्रोटेक्टेड. सो फर्स्ट थिंग वी विल से हैट. छाता पकड़ के जाओ थोड़ा मुश्किल है, हाँ, रोज़ पूरा दिन ऐसे घूमो नहीं होता. तो हैट कौन सा चाहिए आत्मा को? अभी माइंड को कौन सी हैट चाहिए, कौन सी प्रोटेक्शन चाहिए? हाँ, कैप भी नहीं, हैट ही यूज़ करते हैं ना, सो दैट इट विल बी प्रोटेक्टेड राइट अराउंड द हेड. कैप इज़ ओनली हियर, राइट? ओके, क्या कौन सी हैट पहनना चाहिए? हाँ जी, हर चीज़ के लिए एक मेडिटेशन सेफ टूल है. थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं हम, राइट? ओके, तो उसका स्पिरिचुअल मीनिंग मतलब जब व्हेन आई एम नॉट इन माई सेल्फ रेस्पेक्ट, देन आई फील बर्डन. हर चीज़ के बहाव में बह जाती हूँ. मेरा जो अस्तित्व है that is not there, right? So what is the hat? Elevated thoughts and self-respect. Self-respect कौन सा? मैं शाहूकार हूँ, मैं बहुत पढ़ाई किया है, मेरे बहुत सारे डिग्रीज हैं, आई एम वर्किंग सो एंड सो इन सो एंड सो कंपनी. दैट इज़ द self-respect. What is the self-respect? ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा ने हमको ये सिखाया है, द सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बॉडी कॉन्शियस वन. एक्चुअल सेल्फ इज़ नॉट द फिजिकल वन. Actual self, it is not just the physical, but actually this self is that one who is the owner of this body. That is the soul. So self-respect is, I am a soul
what kind of soul am I? समझ में आया? मैं एक आत्मा हूँ. कौन सी आत्मा हूँ? शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली. Whatever situation is making you feel depleted, तो तब उस सेल्फ रेस्पेक्ट को लेना. उस हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है स्वमान. स्वमान अर्थात आत्मा जो जिस स्वरूप में है उस स्वरूप को याद दिलाना, दैट इज हैट. तो व्हाट विल हैपन इफ आई वेयर द हैट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट? व्हाट विल हैपन? आई एम फ्री फ्रॉम ईगो, फ्री फ्रॉम कंफ्यूजन, फ्री फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ लाइफ. समझ में आया? जब बातें आती है, ईगो की बातें आती है, कंफ्यूजन है, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन ऑल द टाइम, वेदर टू डू दिस और दैट, whom to approach, what to do, lots of confusion because I don't have my own stand. तो जब स्वमान में टिक जाएंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट में आएंगे, then I am free from ego, confusion and the pressures of life. ओके याद रहेगी? जब भी आप बाहर जाते हैट पहनते हैं तो क्या याद आना चाहिए? हैट भले पहनो बाहर जाने के टाइम पर, लेकिन ये भी याद रखो कि मैं आत्मा स्वमान में रहूँगी. सामने व्यक्ति ईगो से, प्रेशर से, कन्फ्यूजन से मेरे को परेशान करे, लेकिन आई डोंट वांट टू लीव माय ओन सेल्फ रेस्पेक्ट. I don't want to leave my elevated thoughts. ठीक है? ऐसे आगे बढ़ेंगे और थोड़ी चीज़ें सीखेंगे हम ऐसे. ठीक है. तो नेक्स्ट इज सनस्क्रीन. क्यों सनस्क्रीन लगाना है? आत्मा के लिए कौन सी सनस्क्रीन लगावे? कौन सी सनस्क्रीन लगाए? कौन सी ब्रांड का अच्छा रहता? SPF कितना होना चाहिए? आप देखते हैं ना तुरंत ही हाउ मच SPF 20, 40, 50. अभी मई के लिए 50 से अबव 50 चाहिए. मे बी कितना गर्मी है, तो सनस्क्रीन कौन सा लगाना है? हाँ देखेंगे. तो कौन सा सनस्क्रीन है? विजडम, ज्ञान जो है एक सनस्क्रीन जैसा है. क्यों? किससे मुक्त कराती है ये? टॉक्सिक वाइब्रेशंस जो है हमारे आगे पीछे पूरा दिन, वी विल हैव लॉट्स ऑफ टॉक्सिक वाइब्रेशंस, इमोशनल बर्न्स. अब थोड़ा ये सोचो, फिर बाद में भी बहुत मीनिंगफुल है. हमारी पूरा एक 8-9 दिन से बहुत चिंतन चल रहा था, कौन कौन सी बातें आती है आत्मा को जलाने वाली चीज़ें. सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं? बर्न्स ना हो, राइट? तो कौन सी बर्न्स होती है आत्मा को? टॉक्सिक वाइब्रेशंस जो है, वेर एवर यू गो, वेन एवर यू गो, लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी अराउंड, लॉट्स ऑफ टॉक्सिन्स अराउंड फॉर द सोल and emotional burns. In relationships, lots of emotional burns. So to keep ourselves away from all these burns and means these kind of vibrations, so I have to have awareness. Awareness is a very great thing. If I am aware of something, then I will be protected first. नहीं ऐसा ही चल रहा है तो कुछ नहीं होता. तो बी अवेयर ऑफ वॉट इट इज एंड वॉट आई हैव टू डू. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग एंड आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ डिसीशंस आई हैव टू मेक. सो बी अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग fully and then make decisions. Okay, then is sunglasses. हाँ, सब यूज़ करते हैं सनग्लासेस? नहीं तो भी नॉर्मल ग्लासेस तो पहनते हैं, जो स्पेशली ड्राइविंग में है वो लोग तो पहनते ही हैं. तो कौन से सनग्लासेस पहनना है?
आत्मा को ग्लासेस लगा के देखो कैसे रहता है. हाँ, पॉजिटिव का ग्लास लगाओ. और दृष्टि का बहुत महत्व है ना. सनग्लासेस इज नथिंग बट दृष्टि अपना कैसा हो, है ना. हाँ, दृष्टि का बहुत महत्व है. इसीलिए लौकिक में भी कहते हैं नजर लग गया. नजर माना क्या है. और किसी के पास जाते हैं, ऋषि मुनि के पास जाते हैं या देवताओं के पास जाते हैं, उनके दर्शन करने के लिए भी यही आंखें चाहिए. या किसी का नज़र भी लग जाता है, इसके लिए भी यही यूज़ कर रहे हैं आंखें. वेरी स्पेशल ऑर्गन्स इन द बॉडी. तो ये आंखों को कैसे रखना है, राइट. कौन सी चीज़ें आंखों को मलिन कर रहे हैं, मतलब बुद्धि रूपी जो नेत्र है, बुद्धि रूपी जो नेत्र है उसको कौन सी चीज़ें मलिन कर रहे हैं. हाँ, कौन सी चीज़ें मलिन कर रहे हैं. पूरा टाइम यूज़ कर रहे हैं ना आजकल आंखों को. किस में यूज़ कर रहे हैं. वॉचिंग व्हाट. पूरा टाइम आंखों को यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं. तो क्या देखना है ये भी तो अवेयरनेस हो. आत्मा को खराब कर रहे हैं इन आंखों से देखते हुए. मैं बहुत बार बोलती रहती हूँ, आईज एंड ईयर्स आर द विंडोज फॉर द सोल. तो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसका प्रभाव आत्मा के ऊपर पड़ता है. तो व्हाट आर द सनग्लासेस विच आई नीड टू वेयर. दृष्टि कौन सी होनी चाहिए, कौन सी दृष्टि हो. किसी को देखते ही तुरंत ही आ जाता है, ये तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इनके साथ तो मुझे ऐसे ही रहना पड़ता है. और किसी को देखते हैं एक नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, किसी को देखते हैं मतलब विकारी दृष्टि से देखते हैं, शारीरिक वृत्ति से देखते हैं, शारीरिक दृष्टि से देखते हैं. तो क्या होता है, आत्मा मलेच हो जाती है, डर्टी हो जाती है. तो ग्लासेस कौन सा लगाना है आत्मा का. क्लियर परसेप्शन एंड डिटैचमेंट. शरीर को भले देखो, लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमको सिखाया है, गॉड हैज़ टॉट अस हियर टू सी द सोल, नॉट जस्ट द बॉडी. मैं कल एक परमात्मा की जो हम मुरली कहते हैं, अव्यक्त मुरली, उसमें कल हम पढ़ रहे थे एक बात, बहुत अच्छी बात. उसमें वो था, बाबा ने बोला कि आप बोलते हैं कि मुझे शरीर ही दिखता है. भले शरीर देखो, आँखों को देखो, जिससे भी बात कर रहे चेहरे देख रहे हैं, लेकिन दोनों आँखों के बीच में जो आत्मा है उसको भी देखो. तो जब आत्मा को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, I don't go with the negativity whatever I am seeing. I'll be free from all the perceptions which I have for the other person. तो सनग्लासेस से क्लियर परसेप्शन एंड डिटैच्ड होके देखो. डिटैच्ड होके जितना चाहिए उतना ही देखो. आँखों को बहुत संभाल के रखना है या नहीं. आँखों को बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि आत्मा को मलेच कर देती है. तो आत्मा डिटैचमेंट से कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट जस्ट द फिजिकल बॉडी अलोन बट आई एम द सोल. उस दृष्टि से देखना है. तो ये कब होता है, तो ये करने से क्या होता है, हार्श जजमेंट्स, इनर क्रिटिसिज्म से आप बच जाते हैं. ठीक है. और एक एक्सेसरी लास्ट वाला हम देखते हैं, ये है स्लीपर्स, है ना. हाँ, बहुत टाइट वाला, हील्स वाला, वजनदार. इफ़ यू वेयर, विल यू बी कंफर्टेबल. हाँ, तो कौन सा स्लीपर्स पहनना है, देख के चलो.
राइट, बोलते हैं ना। हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसमें एक कार्टून है, उसमें भाई ज़रा देख के चलो, कहाँ जा रही है, किस वृत्ति से जा रही है, ज़रा देख के चलो। हाँ, तो माइंडफुल स्टेप्स होना चाहिए। जब ऐसी स्टेप्स लगाएंगे तो रिएक्टिव बिहेवियर, इम्पल्सिवनेस से आप बच जाएंगे। ये थोड़े एक्सेसरीज है, हम यूज़ करना है, ठीक है, याद रहेगी, याद होंगे। हाँ, तो आप यू नॉट नेसेसरली यही चीज़ें आप याद रखो, लेकिन when you are wearing glasses, when you are applying sunscreen, when you are wearing your hat, when you are going out, तो थोड़ा सा हाँ, मुझे कैसे जाना है बाहर जाने के टाइम पर। अभी कमरे से बाहर जाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिफोर गोइंग एंड मीटिंग योर चिल्ड्रन एक्चुअली। हाँ या ना, क्योंकि वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द चिल्ड्रन and then they don't listen to me and I get irritated and I get angry. So first wear your dress before you go and talk to your children. Your outfit here have lots of patience, lots of acceptance, lots of love. लव तो है, हम बोलते हैं लव ज़्यादा है, इसलिए कंट्रोलिंग नेचर आ जाती है या बॉसीनेस आ जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं जैसे बोलती हूँ वैसे सुनना है उनको, तो वो नहीं होता, तो आत्मा की हीट बढ़ जाती है। फिर वहाँ रिलेशनशिप्स में कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है ना। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मीन्स अवेयरनेस इज नॉट आप पूरा दिन बैठ के चैंट करो, नो। Be aware of what is happening. Be mindful of what you are going to do, what you are doing. Then also lots of accident you can prevent. Soul accidents, right? Okay. तो आगे बढ़ते हैं। और एक है बहुत अच्छा, मुझे जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, wear an umbrella. Okay? तो umbrella कौन सा पहनना है? हाँ, कौन से छाता चाहिए? तो आत्मा को चाहिए 7 गुणों के अम्ब्रेला। आत्मा जो है सतो गुणी बोलते हैं, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कोर्स किया होगा यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में। द सोल, द स्पिरिट, द बीइंग, द पावर विच इज हियर इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, हु इज रनिंग द होल शो, द फिजिकल बॉडी इज मेड अप ऑफ 7 वर्च्यूज, 7 वैल्यूज है आत्मा के अंदर। किसी को याद है, सुना हुआ कोर्स में? 7 वैल्यूज, पीस, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस और पावर, नॉलेज, प्योरिटी। दीज आर 7 वैल्यूज ऑफ द सोल। तो हर आत्मा को आप जहां भी रहो, जो भी करो, हर आत्मा के लिए ये गुण है। परसेंटेज डिफरेंट है, लेकिन एवरी सोल हैज दिस 7 वर्च्यूज। तो ये 7 वर्च्यूज हम देखते हैं कि कौन सा छाता कब पहनना है, कब पकड़ के जाना है। तो यू आर फीलिंग व्हाट नेगेटिव इमोशन यू आर फीलिंग, फायर ऑफ एंगर है, तो कौन सा छाता पकड़ना है? ये 7 क्वालिटीज में पीस का छाता पकड़े, ठीक है। तो वी वेयर कूलिंग ऑफ पीस। अच्छा लग रहा है? हाँ, फायर ऑफ एंगर है आपके सामने। ऐसा कोई व्यक्ति है या कोई सिचुएशंस है वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ हीट थ्रू एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत इधर से भी निकल रहा है एंग्री, कभी कभी सिर्फ आंखों से ही नहीं, इधर ही नहीं, बाहर भी निकलता, कभी इधर से भी निकलता है ना। तो एंगर है बहुत ज़्यादा, तब यू हैव टू वेयर द अम्ब्रेला ऑफ पीस, ठीक है। ये तो याद रहेंगी ना। हाँ, तो एंगर सामने, गर्माहट, उसके लिए छाता है मेरा पीस। नेक्स्ट है डस्ट ऑफ डाउट्स, नॉलेज चाहिए।
तो प्योरिटी चाहिए, मतलब क्लैरिटी चाहिए. डाउट्स बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन ज़्यादा है. आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरे छाते भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट. मैं जो सोच रही थी उस लाइंस में कुछ सिचुएशंस को एनालाइज करके मैं डाली हूँ, बस ऐसे ही. ठीक है, तो डस्ट ऑफ डाउट्स बहुत सारा है, तो क्लैरिटी ऑफ प्योरिटी इज इम्पोर्टेंट. हाँ, पवित्र आत्मा और क्लैरिटी है पवित्रता की, तो ऑटोमेटिकली आपके डाउट्स है वो क्लियर होंगे. क्लैरिटी है ना, तो डाउट्स पूरा क्लियर होंगे. और तीसरा नेगेटिव इमोशन, कंफ्यूजन, कंप्लेंट्स, राइट, क्रिटिसिज्म, ये सब बहुत ज़्यादा है. तो कौन सा अम्ब्रेला पहनना है? हाँ, कौन सा अम्ब्रेला यूज़ करो, कौन से कलर का पहने? किसी किसी के पास 2-3 अम्ब्रेला होते हैं ना, ये भी कलर का, वो भी कलर का, ये भी कलर का. तो आत्मा के 7 गुणों का 7 अम्ब्रेला रखो साथ में हमेशा, कभी छोड़ के मत जाओ घर में. पूरा दिन इधर अंदर रखो. पीस का अम्ब्रेला हो, प्योरिटी का अम्ब्रेला हो. तो नेक्स्ट है कंफ्यूजन एंड कंप्लेंट्स में आपको चाहिए प्यार का अम्ब्रेला, काइंडनेस का अम्ब्रेला चाहिए. ठीक है, लिख रहे हैं, थोड़े लोग तो लिख रहे हैं, याद रहेगी. आप एनालाइज करो नेक्स्ट वीक तक की कौन सा अम्ब्रेला मुझे ज़्यादा यूज़ करना पड़ा, कौन से सिचुएशंस आए मेरे सामने. हाँ, तो कंफ्यूजन एंड कंप्लेंट्स है, तो लव एंड काइंडनेस का अम्ब्रेला यूज़ करो. नेक्स्ट है हेवी हार्ट. हाँ, होता है हेवी हार्ट, यू फील हेवी हार्टेड. हाँ हाँ, कभी कुछ बात भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वी फील वेरी हेवी. होता है रिलेशनशिप्स में भी, फर्स्ट तो हैवी हार्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद बाहर निकलता है, अंदर बहुत बर्डन फील कर लेते हैं. तो हैवी हार्ट है, तो उसके लिए कौन सा छाता यूज़ करें? हैप्पीनेस का छाता यूज़ करें, और फॉरगिवनेस का छाता यूज़ करो. तो डांस ऑफ जॉय, ब्लिस, राइट. हाँ, हैवी है तो उसमें आप जॉय रहो. जितना जितना आप प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुशी में रहेंगे, उतना आप वो हैवीनेस से लाइट हो जाते. तो दैट इज डांस ऑफ जॉय. सो नेक्स्ट है विंड ऑफ ट्रबल्स. आते हैं आपके पास ट्रबल्स? आते हैं, या यू आर फ्री फ्रॉम ट्रबल्स? आर यू फ्री फ्रॉम ट्रबल्स? नो, नहीं, ट्रबल्स नहीं आते आपके पास, या आते हैं एवरी डे? शुरू हो जाते हैं. मतलब आजकल इट्स लाइक दैट आई मेक अप माई टेंडेंसी टू गेट ट्रबल्ड ऑल द टाइम. अगर वहाँ ट्रबल है या नहीं है तो भी मैं परेशान हो जाती हूँ. ऐसे माइंडसेट, ऐसा एटीट्यूड बना दिया है हम लोगों ने, राइट. तो नेक्स्ट है विंड ऑफ ट्रबल्स में लिफ्ट ऑफ ब्लिस को यूज़ करो. ये कुछ मुरलियों से भी हमने निकाले हैं, जो परमात्मा की जो वाणी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसमें भी जो जो शब्द बाबा यूज़ करते हैं, परमात्मा यूज़ करते हैं, उसमें से निकाले हैं. ठीक है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा चर्निंग था, क्या किसको यूज़ करे कब. एंड नेक्स्ट इमोशन इज क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस. तो क्या करना है उस समय? व्हाट वी हैव टू डू इन द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस? हाँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस. वो कौन सी चीज़ में ब्लिस होंगे वो भी देखना है. हर चीज़ में ब्लिस नहीं है. इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो किस सिचुएशन में वो मालूम होना चाहिए, राइट. सो क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, व्हेन देयर इज क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, देन लाइट ऑफ नॉलेज. इग्नोरेंस है, देन आई हैव टू यूज द अम्ब्रेला ऑफ लाइट ऑफ knowledge. Okay, and the last one is howl of storms. तो उसमें क्या करना है? कौन सी एक आत्मा का गुण बच गया?
peace, purity, love, joy, bliss, knowledge, power. तो स्पिरिचुअल पावर्स यूज करना है, ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स यूज करना है. ठीक है, तो ये 7 umbrellas will you carry along with you? हाँ, all the time they will protect you. So exercise these values. लव को कब यूज करना है? लव एंड काइंडनेस कब यूज करना है? कंफ्यूजन है तो. और कभी एंगर आया सामने तो उसमें भी आपको स्नेह की शक्ति यूज करना है. पीस को यूज करते ही है, लेकिन कभी कभी स्नेह जितना देंगे आपके रिलेशनशिप्स में उतना वो नॉर्मल होंगे. तो हर छाते को आपके साथ में रखना है. यू हैव टू कीप दिस 7 umbrellas along with you in your relationships, in your situations. ठीक है, सब ले लो, फोटोग्राफ सब ले लो. आप कभी कभी इसको यूज करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका चिंतन भी चलता है फिर. ओके, हाँ जी, ऑल द टाइम. और 7 colored umbrella with all 7 values of the soul. हाँ, लेकिन but if you lose one umbrella, you don't use that time, right? And they are not heavy. You don't need to think 7 umbrellas how I can carry. Okay, okay. To keep the soul hydrated all the time, what else we have to do? और क्या करना है? एक तो थोड़े चीजें हमने देखा, एक्सेसरीज. और क्या करना है? हर चीज में मेडिटेशन 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 सेंटर में आए तो हर चीज में मेडिटेशन बोल दो, आंसर मिल जाएगा. अच्छा है, मेडिटेशन करना है, लेकिन उसको किस रीति से वो भी देखेंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड लाइक दिस ऑल्सो. क्या है वो? हाँ, नींबू पानी. नींबू पानी है या नारियल पानी है? कौन सा है? हाँ, शुगर केन जूस है, हाँ, नारियल पानी है. हाँ, राइट. यू कीप यूर सेल्फ हाइड्रेटेड ऑल द टाइम. कितने ग्लास पानी पीना है? हाँ, समर में चलो कितने लीटर्स? एटलीस्ट 3 तक तो आना ही है, राइट? तो एटलीस्ट 3 लीटर्स भी पिएंगे, देन यू विल बी हाइड्रेटेड. हाँ, ओके. तो सोल का हाइड्रेशन रखने के लिए ऑल द टाइम डिहाइड्रेटेड सोल, so what we need to drink? Okay, so we will use some summer drinks. Okay, summer drinks. Okay, so first thing is water. कौन से वाटर पीना चाहिए? क्लीन वाटर. और कौन से वाटर पीना चाहिए? हाँ, मिनरल वाटर. कितने बॉटल खरीदेंगे रोज मिनरल वाटर? कौन सा मिनरल भरा हुआ पीना चाहिए आत्मा के लिए? विच मिनरल्स द सोल हैज टू गेट? हाँ जी, एनर्जाइज्ड वाटर, केंजन वाटर, बहुत सारे है ना. ओके, तो वाटर कौन सा पीना चाहिए? साइलेंस ऑफ योर माइंड. ये भी काम. जब कुछ बातें हो रही है डिहाइड्रेट करने वाले आपके आत्मा को, तो कहीं कहीं शांत हो जाओ, चुप हो जाओ. फिजिकली भी चुप हो जाओ और इधर भी थोड़ा शांति रखो. यू डोंट नीड टू प्रूव दैट टाइम इटसेल्फ. यस, you don't need to prove that time itself. So just have some patience and just keep quiet. Silence. Silence of words, silence of your mind. Both. Okay? तो इससे क्या होता है
कि सोल डिहाइड्रेशन जो है वो कम हो जाता है। सामने वाले व्यक्ति ऐसे आते हैं कि आपको आपकी एनर्जी लॉस करने जैसा है। हम भी यहाँ पर देखते हैं, बहुत बार ऐसे भाई बहनें मिल जाते हैं, यू फील सो मीन्स डिहाइड्रेटेड आफ्टर मीटिंग देम, and they will means sometimes I feel totally heavy after meeting few souls. उनके वाइब ही ऐसे कैरी करके आते हैं या आपके दिल को इतना हेवीनेस दे देते हैं कि मतलब इंटेंशनली भी, कोई कोई ऐसे भी नहीं कि उनके प्रॉब्लम से आते हैं, उनको तो बहुत प्यार से हम हैंडल करते हैं डेफिनेटली। फिर हम भी जाके हाइड्रेट कर लेते हैं, बाबा के कमरे में जाते हैं, मेडिटेशन रूम में जाते हैं, अपने आप को हाइड्रेट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी जानबूझ के भी कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि आपके एनर्जी ड्रेन करने वाले आ जाते हैं। होता है आपके साथ भी ऐसा? आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा करते हैं। दे विल मेक यू डाउट योर ओन कैपेसिटीज, they will make you feel doubted. अपने आप को ही कुछ हम कमी महसूस करते हैं, अरे ऐसे करना था। फिर when you analyze the situation, no, what I did was right only, but this person came to deplete my energy. So from my experience, what I understood is to keep the soul hydrated all the time, I need to exercise silence of my mind, silence of my words. ठीक है? This is plain water. Okay? So what else I have to use? Sugarcane juice. The cell to be very hydrated. वही होता है ना, पानी जब आप पीते हैं तो आपके सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। तो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए कुछ, यू पुट सम शुगर केन जूस और वॉट एवर यू यूज। सो कौन सा शुगर केन जूस चाहिए? हाँ, अदरक मिक्स। अच्छा, लेमन नहीं चाहिए? वो भी डाल दो। तो कौन सा शुगर केन जूस? तो शुगर केन स्पेशलिटी इज दैट अंडर प्रेशर इट ओनली गिव्स, आप कितने भी बार मशीन में डालो, थोड़ा समय के बाद वो मतलब तीखापन देता है क्या? मेरे पास शुगर खत्म हो गया, अभी तीखा देती हूँ, ऐसे बोलता है? नहीं, अंडर एनी प्रेशर sugar can only give sweetness. If the situations of life putting me under pressure all the time, what are you giving? What things are coming out from you? मतलब जो क्वालिटी उसके अंदर है वही निकलता है ना। शुगर केन की क्वालिटी है स्वीटनेस, तो कितने भी बार प्रेशर में डालो तो वो स्वीटनेस ही निकलता है। तो हियर ऑल्सो स्वीटनेस अंडर एनी प्रेशर, दिस इज शुगर केन जूस फॉर द सोल, मीन्स दैट इज इनर रेसिलियंस। अगर आप शक्तिशाली है अंदर, देन ऑटोमेटिकली यू आर स्वीट। तो ये क्या करता है? जो बिटरनेस है, आपकी कड़वाहट है, जो रिलेशनशिप्स में फ्रस्ट्रेशन है, रिएक्टिव वर्ड्स अंडर स्ट्रेस है, उसको कम करता है। ओके, गॉट इट? और क्या करते हैं और क्या पीते हैं चीजें? समर ड्रिंक्स, राइट, कोकोनट वाटर। रुको, वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। मेरे को मालूम है आप ये सब बोलेंगे, इसीलिए मैं चिंतन किया है पहले से। तो कोकोनट वाटर कौन सा पीना है? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ कोकोनट? मिनरल्स, कोल्स, विटामिन्स, और क्या है? नेचुरल है।
यस, श्रीफल जो परमात्मा के सामने आप मंदिर में जाते हैं तो कोई और फ्रूट नहीं ले जाते हैं तोड़ने के लिए, कौन सा? सिर्फ कोकोनट को ही ले जाते हैं. व्हाई? इट इज ओनली फ्रूट विच इज अनटच्ड बाय एनीथिंग, ऐसे बोला गया है शास्त्रों में भी, इसलिए उसको ही यूज करते हैं. मतलब नेचुरलनेस. तो आत्मा की जो नेचुरलनेस है, प्योरिटी है, सोल कॉन्शियस थॉट्स है, वो जब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आत्मा की जो स्वीटनेस है वो भी बढ़ेगा. तो ये जब यूज करेंगे आपके मेंटल क्लटर, इम्प्योरिटी, ओवर थिंकिंग, ये सब बातें निकल जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे स्पेशल भाई साहब का स्पेशल ड्रिंक, ग्लूकोज. हाँ, ORS, ग्लूकोज, ये सब चाहिए. तो आत्मा के लिए कौन सा ग्लूकोज चाहिए? हाँ, कौन सा ग्लूकोज चाहिए? तो आत्मा को चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट का, सोल एनर्जी का. ये हम डिप्लीट कर लेते हैं तो फिर इसको भरना पड़ता है. तो इससे क्या होता है, इमोशनल ड्रेन जो हो जाता है और सेल्फ डाउट जो आती है उससे हम बच जाएंगे. ओके. लास्ट समर ड्रिंक इज एनर्जी ड्रिंक्स. हाँ, यूजुअली पीपल यूज, स्पेशली आई मीट सो मेनी स्पोर्ट्स चिल्ड्रन. हम एक एकेडमी में भी जाते हैं सवेरे सवेरे उनको क्लास कराने. सबके पास कुछ हो या ना हो, एनर्जी ड्रिंक तो ज़रूर होता है, क्योंकि 12 बजे तक खेलते हैं क्रिकेट खेलने वाले बच्चे. हाँ, और छोटे छोटे बच्चे भी आते, इतने इतने छोटे छोटे टिल्लू टिल्लू बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे हैं, और 2 घंटा खेलते हैं तो भी उनके साथ एनर्जी ड्रिंक तो ज़रूर लाते हैं. और अभी समर के टाइम पर दे ब्रिंग मोर एंड मोर एनर्जी ड्रिंक्स. और मम्मा पापा तो बहुत अच्छे उनको पैक करके, कूल करके, फ्रिज में पूरा रात रख के, सवेरे तक रख के, आइस बना के बेचते हैं ये क्रिकेट वाले बच्चों को, क्योंकि 11-12 बजे तक पीते हैं तो उनके लिए ऐसा. तो एनर्जी ड्रिंक कौन सा चाहिए आत्मा को? डीप मेडिटेशन. और आपकी जो एनवायरनमेंट है उसको इतना मेडिटेटिव बनाओ, देन इट विल एनर्जाइज योर सोल. माहौल ही ऐसा है ना बाहर, इसीलिए यू हैव टू कीप अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट. डिप्लीटिंग एनवायरनमेंट नहीं, अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट हो. तो ये इसमें बर्नआउट, मेंटल फैटिग, डिस्कनेक्शन जो है उससे आप बच जाएंगे. ठीक है. तो ये एनर्जी ड्रिंक्स, ये समर ड्रिंक्स यूज करेंगे. ओके. खाना कौन सा फिर? फ्रूट्स लेते हैं, सीजनल फ्रूट्स, सैलड्स. हाँ, तो जितना आप सैलड लेंगे, जितना आप सीजनल फ्रूट्स लेंगे, उसमें जो है सीजनल फ्रूट्स में और जो लोकल एरिया में जो मिलने वाले फ्रूट्स है उससे बहुत अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ रहेगा. तो सीजनल फ्रूट्स कौन सा है अभी? मैंगोस. वैसे तो गर्मी करने वाला चीज़ है, लेकिन ये खाना भी चाहिए, राइट? ऑप्टिमम लेवल में हर चीज़, राइट? ओके. तो ईट लाइट, ईट प्योर, सो दैट यू थिंक लाइट, यू बिकम प्योर. ओके. तो जो आप खाते हैं वैसे ही आप सोच भी चलता है आपका. जैसा आप खाएंगे वैसे ही आप बनेंगे, वैसे ही आप सोचेंगे. इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट कौन सा आप खा रहे हैं. ठीक है. इधर मैं थोड़ा सा फ्रूट्स का रखी हूँ. एक है मैंगो. तो कौन सा मैंगो ले वो? बहुत एक्सपेंसिव है अभी, तो अभी शुरू नहीं हुआ तो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये मैंगो तो बहुत फ्री है. स्वीटनेस थ्रू पेशेंस एंड मैच्योरिटी. हाँ, तो ये जब है तो इम्पेशेंस, इमेच्योरिटी की जो बातें होती है उससे आप बच जाएंगे. ओके. नेक्स्ट है, आपको मालूम है ये आइस एप्पल ताट मुंजल बोलते हैं. हाँ, नॉर्थ में ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन आप हैदराबाद में देखा होगा, बहुत कूलिंग इफेक्ट वाला है ये, एंड वेरी प्योर, वेरी हेल्दी. ओके. तो दैट इज आइस एप्पल. तो आइस एप्पल क्या करना है? नेचुरल इनर कूलनेस एंड कामनेस अंडर एनी प्रेशर. तो ये आइस एप्पल आप खाएंगे तो आप एंगर, इमोशनल ओवर हीटिंग से बच जाएंगे. एंड नेक्स्ट है पाइनएप्पल.
कौन सा पाइनएप्पल खाओ? पाइनएप्पल खाते हैं? हाँ, तो कौन सा पाइनएप्पल? स्वीटनेस प्रोटेक्टेड बाय स्ट्रेंथ. ओके, तो you will be free from all these things. You are not vulnerable for any kind of problems then. Then you have watermelon also. तो क्या करना है watermelon? हाँ, rich in so many things, watermelon. तो discovering inner richness beyond outer hardness. ठीक है, तो सुपरफिशियल लिविंग, ईगोफुल लिविंग जो है उससे आप बच जाएंगे जब ये वाटरमेलन आप खाते हैं. तो लास्ट फ्रूट है मस्क मेलन. ये सब यूज़ करते हैं ना? हाँ, जूस भी बना के पीते हैं. मतलब मेरा मतलब ये है कि आप जो भी कर्म करो, बी अवेयर ऑफ व्हाट वी हैव टू डू. सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, आत्मा को भी क्या करना है ये भी सोच के करो. इसलिए हमने इतना सारा रखा है इधर. ओके, तो फ्रेग्रेंस ऑफ वर्च्यूज, कीप that kind of muskmelon so that you are free from harshness and over explaining things. Okay, so these fruits we have to use. Next, कौन पढ़ेंगे? Can anyone volunteer to read this story? Beautiful story. कौन पढ़ेंगे? हाँ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ. कम. In a small town near desert, there lived a famous weaver named Meera. She was known for making the softest and the loosest dresses, perfect for the scorching summers. One day, a group of travelers arrived, exhausted and frustrated from the heat. They wore a heavy, tight cloth that stuck to their skin and made them feel trapped and angry. Seeing their suffering, Meera smiled and gifted them her special loose cotton robes. Wear these, she said, and feel the difference. As soon as they changed, they felt lighter, cooler, and freer. They could also move easily, breathe deeply, and smile again. Very good. What's your name, Meera? Huh? Arshi. Okay. So whose story is this? Who are the travelers? Who are the travelers? Who are wearing tight? Who are wearing unbreathable clothes? Synthetic clothes? Who are wearing those? Whose story is this? Who is the traveler here? Right? All of us are travelers. The soul is the traveler. So in the heat of life, the soul wearing these kind of dresses. When we wear that dress and we feel, oh, I am looking very good. And after a while, we feel that this is not the right attire which I am wearing. Right? So wear this, she said, and feel the difference. So what we have to wear? So see this. So what we have to wear? One traveler asked, Meera, how did you know this simple change would help so much? Huh? So Meera replied, life is like a long journey through changing seasons. If your mind is tightly wrapped in expectations, worries, and rigid thinking, even small troubles will suffocate you. Yes, even small things also will suffocate you. If you are wearing, what you are wearing? Expectations, worries, rigid thinking. If I wear, then small things also suffocate me. Right? But if your mind wears the loose dress of flexibility, letting go of things quickly and adjusting with love, you stay cool and fresh no matter how hot life becomes. Isn't it a beautiful story? So what dress we have to wear? So wear light clothes.
So नीचे लिखा है ना spiritual outfit when you are going out, light and loose colored dress, that means let go of rigid expectations, flow with situations instead of fighting with them. Okay, and then stay light in relationships. Stay light in your relationships. So stay light is focus on giving love, not expectation, not asking, not demanding. Give. Whatever you give, that is what comes back to you. If you give love in your relationships, then you are reaping it. You will get lots of fruits of love. Okay? If you give kindness, if you reap the fruit of, means seed of kindness, then you get lot of kindness fruits. Somewhere or the other, someone will help you to come out from that situation. Because you sown that seed. जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा, है ना? तो कौन सा ड्रेस पहनना है? कौन सा ड्रेस पहनना है? लाइट ड्रेस, लूज ड्रेस ऑफ कौन सा? एक्सपेक्टेशंस को छोड़ो, लाइट रहो आपके रिलेशनशिप्स में, डोंट एक्सपेक्ट टू मच, डोंट डिमांड टू मच, जस्ट गिव इन रिलेशनशिप्स, देन यू विल बी कूल. आप जब एक्सपेक्टेशन रखते हैं फिर उसको नहीं पाते तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स खराब होते हैं. ओके, सो दिस इज लूज ड्रेस. सो नेक्स्ट, so be a cool breeze in a heated world. So आप जहाँ भी जाओ, wherever you go, how I should be, how I should be. So this is the takeaway message this week or this month, next 1 month, when there is summer for the soul. So what I have to go with? You also don't create heat in the situations. Be a cool breeze. Possible? ऑफिस में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, वो 4 बोले और मैं 8 बोल देती हूँ, तो दैट इज कूल ब्रीज? दैट्स कूल ब्रीज? नो. बी लाइट. आप वहाँ ही सब कुछ प्रूव करने की तभी ज़रूरत नहीं है. हैव सम पेशेंस, हैव सम मैच्योरिटी. Create that environment. Okay? Be a cool breeze in a heated world. Means you are like an angel. आप जहाँ पर भी जाओ, angel gives that lightness. So you be an angel in the world when you go out. You be an angel in your home. Possible? Possible? कितने लोग angel रहेंगे पूरा हफ्ता? Means light. Don't take things too seriously. Don't get frustrated. Don't get angry. हो सकता है थोड़ा ट्राई तो करो 3 दिन के लिए. Have a trial. फिर धीरे धीरे next 1 week, next 1 month. Okay? Be a cool breeze in a heated world. So heated world, the whole world is heated now. We have seen the situation last week also. हाँ, तो अभी क्या करना है उन सभी को? हाँ, तो सिचुएशन को देखा हमने. तो heated world, mentalities are very hot, expectations is very much. We don't go in the political scenario. I am not talking about political things. So what I can contribute to those families and the people who are affected in this situation? कौन सा है ये? पहलगाम का जो सिचुएशन हुआ है, हाँ वो सब अलग बात है. जो दुनियावी बातें चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज, जियोग्राफिकल इश्यूज, वो सब अलग है. आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. व्हाट contribution I can do for those souls and families and those who have attacked also? I'm sure that that soul also will not be peaceful after doing all these things. Will that soul be peaceful?
भले दिखावट में बोल सकते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे किया है, खुशी हो रही है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग द सोल डजंट नीड ऑल दिस थिंग्स, और डजंट मीन्स द सोल्स नेचर इज नॉट दैट. तो कोई भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेम्स ऑफ एनी कंट्रीज और नथिंग, बट हाउ आई कैन स्प्रेड द वाइब्रेशंस ऑफ पीस. तसल्ली हो जाए मन को, शांति मिले उस आत्मा को, और उनके फैमिलीज जो इतना तड़फन में है उन लोगों को भी शक्ति मिले, सिचुएशन को पार करने के लिए कुछ शक्ति मिले. तो उनको भी हमारे तरफ से तो कंट्रीब्यूट करना है ना. और जब भी हीटेड न्यूज़ देखते हैं ना, ये पूरा टाइम यही तो ब्राउज कर रहे हैं ना लोग, पूरा टाइम आपके सोशल मीडिया में यही अपीयर हो रहा है, और हम यही न्यूज़ बार बार इस टीवी वाले ये एनालाइज किया, वो एनालाइज किया, वही बातों को डिफरेंट एंगल से सब लोग बता रहे हैं, हम इसमें ही फंसे हैं. इंफॉर्मेशन इतना ले लिया कि आत्मा के अंदर इतना गर्माहट हो गई है. तो दैट इज व्हाट आई सेड, दृष्टि क्या होना चाहिए, कितना मुझे नेसेसरी है. न्यूज चाहिए, लेकिन हाउ मच इज इट नीडेड और नेसेसरी फॉर द सेल्फ, वो भी चाहिए ना. जितना मैं कंज्यूम कर रही हूँ मे नॉट बी नेसेसरी दैट मच. स्टे लाइट में ये भी आ जाता है. हम देखते हैं, फिर वही रिपीट करते हैं, वही दूसरों को भी बोलते हैं, फिर इतना अंदर हेवीनेस आ जाता है, ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहे हैं, ये सब क्या है. तो इससे अच्छा आत्मा को लाइट रखने के लिए क्या करना है, तो वी हैव टू spend few minutes of positive vibrations. This is what in Brahma Kumaris it is said, मनसा सेवा. शारीरिक सेवा तो हम जाके नहीं कर सकते, लेकिन अभी मुझे करना है मन को, अपने मन को शक्तिशाली बनाकर पूरे विश्व की आत्माओं को शांति की, शक्ति की, खुशी का दान करो, आनंद का दान करो, पवित्रता की वाइब्रेशंस भेजो, ताकि हर मन जो है शांत हो जाए, ऐसे चीज़ें फिर नहीं हो. उसके लिए हम प्रयास करते. ठीक है, तो मेडिटेशन करें हम थोड़ा समय, हाँ, टू कीप द सोल हाइड्रेटेड. ओके, चीज़ें अच्छी लगे, जो देखा, क्या करना है, कौन सा एक्सेसरीज यूज़ करना है, कौन से माइंडसेट को आपको रखना है, कौन सा अम्ब्रेला चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी है, क्या पीना है, लाइट ड्रेस कौन सा है. ठीक है, ओके. तो हम चलते हैं मेडिटेशन. हाँ, सो यू आर मैसेंजर ऑफ पीस. वो मैसेज सबको देना है, पीस की मैसेज पूरे विश्व को देने के लिए. चलो बैठ जाओ सभी शांतमय होकर. So this is what the soul's place. The soul is just a being of light, being of peace. सभी को मालूम है ना, आत्मा यहाँ पर शक्तिशाली आत्मा यहाँ पर है, लेकिन जो चीज़ें हीट थिंग्स नेगेटिविटी उसकी शक्ति को डिप्लीट कर रहे हैं. तो अभी 7 गुणों का जो अम्ब्रेला बताया, 7 वर्च्यूज ऑफ द सोल, ये 7 वर्च्यूज है. तो ये छत्र छाया में आत्मा को ले जाएंगे अभी. ठीक है, सिटिंग क्वाइटली, टेक अ डीप ब्रेथ इन gently and let go. Once again, sit in your self-respect that I am a being of light. मैं एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूँ. Visualize
a point of light in the center of the forehead. आत्मा को देखे, फील करे, मैं एक आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं। नेगेटिविटी की बातों से, अननेसेसरी चीजों से मैं आत्मा मुक्त पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। मेरा पिता परमात्मा शिव बाबा जो आनंद का सागर है, मैं आनंद की किरणें, शक्ति प्राप्त कर रही हूं। जस्ट विजुअलाइज rays of happiness, bliss flowing from the supreme light, making the self full with the inner joy and happiness. परमात्मा पिता शिव बाबा सर्व गुणों का सागर मुझ आत्मा को एक एंजेलिक ड्रेस प्रदान कर रहे हैं। फील दैट यू आर इन द बॉडी ऑफ एन एंजल who is light, who is powerful. This is like a bulletproof dress for the soul. बाहर की जो भी बातें, चीजें, लोगों की मनोवृत्तियां कुछ भी टच नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैं परमात्मा की ये प्रकाशमय बहुत लाइट ड्रेस में हूँ। दिस इज अ पावरफुल ड्रेस विच गॉड हैज गिवन मी। Wear this dress. And now visualize the souls who are in the negativity, and I am a messenger of peace, spreading God's light, God's love to the whole world. ये परमात्मा शक्ति से सर्व आत्माएं
प्रसन्न, शांतमय, शक्तिशाली हो रहे हैं। और मैं आत्मा परमात्मा की ये छत्र छाया में सभी को विजुअलाइज कर रही हूँ। सर्व आत्माएं यही लाइट के अंदर, प्रोटेक्शन के अंदर है। Visualize everyone is playing their role, but I am not seeing their role, but I am seeing the soul. And God's light is flowing to all the souls, making them strong, mentally healthy, emotionally healthy, spiritually fit. And I visualize a world where everyone is with lots of understanding, peace and happiness, cooperative. That is the vision of God. And as I am child of God, I am also messenger who is creating this world, जो एक सतयुगी दुनिया लाने में मैं भी परमात्मा के कार्य में मददगार हूँ। मैं भी शांत, शक्तिशाली और सर्व को शांत, शक्तिशाली बनाऊंगी। यही संकल्प से मेरा संकल्प, बोल, कर्म, मेरे बिहेवियर, मेरी दृष्टि, वृत्ति सब पावरफुल बनाती जाऊंगी। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें and take this positive vibrations, coolness along with you for the whole week. And keep yourself hydrated. Om Shanti.